Good evening, everyone. So, dear students, we will continue with the nucleophilic substitution reaction. We will continue with the mechanism part. Let us see once again the reaction where SN2 mechanism takes place. Yesterday we had seen that part. When we take an alkyl halide like CH3Br, and when it is allowed to react with aqueous solution of sodium hydroxide or potassium hydroxide, they are heated together. What we get here is CH3OH plus NaBr. This is a simple nucleophilic substitution reaction. Yesterday we had written the ionic form of this reaction. मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ आज, है ना, क्योंकि आज सिस्टमेटिक समझेगा आपको. Ionic form of this reaction, the substrate will not ionize, this will remain, but the attacking reagent will ionize into sodium Na positive ion, aqueous, sodium ion and hydroxyl ion. The product will also remain intact, but the salt undergoes ionization and we get here this 2 anion and cation. Cancelling the common ion from both the sides, we finally get this reaction. CH3Br plus OH minus 1 aqueous under hot condition gives methyl alcohol, and Br as a nucleophile get replaced. So this is a nucleophilic substitution reaction. Why we call this as a nucleophilic substitution? The stronger nucleophile OH replaces the weaker nucleophile, hence this is a nucleophilic substitution reaction denoted by SN. है ना? Nucleophilic substitution. Stronger nucleophile replaces the weaker nucleophile. अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है हमें. अब मैकेनिज्म में कल मैंने एक्सप्लेन किया था, और आपको कहाँ लिखना है मैकेनिज्म आप देखेंगे, इन द अबाव रिएक्शन करके लिखा हुआ है और ब्लैंक स्पेस है. ब्लैंक स्पेस है. इन द मैकेनिज्म, इन दिस मैकेनिज्म बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. उसके ऊपर ये जो ब्लैंक स्पेस है वहां ये रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है अपने को. तो कल जैसे बेटा बात हो रही थी कि CH3Br और ये OH करेक्ट है, तो क्या होता है, CH3Br OH replaces Br, but when we write the structure of it, what we see that Br is also a nucleophile, this OH is also a nucleophile. So it seems to be very simple that nucleophile replaces the other nucleophile, but it is not like that. What happens? This nucleophile attack on carbon, है ना, because carbon carries delta positive charge. उस पे अटैक करेगा, ये अपना बॉन्ड बनाएगा और Br का बॉन्ड ब्रेक होगा. दैट इज द रिएक्शन. नॉर्मली हम बोलते तो ऐसा ही है, OH ने Br को रिप्लेस कर दिया, लेकिन रिप्लेस कैसे करता है वो? This OH creates the bond with carbon. It attacks on carbon which carries the opposite charge. But when it tries to come and create bond with carbon from the same side where Br is available, this attack, what we say, the front side attack of nucleophile is prevented, है ना.
ये फ्रंट साइड अटैक नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाएगा फ्रंट साइड अटैक? क्योंकि Br भी न्यूक्लियोफाइल है, OH भी न्यूक्लियोफाइल है, एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। So like charges when repel each other, there will be no possibility of attack of this OH from the same side. So क्या होगा? जब ये सेम साइड से अटैक नहीं कर सकेगा, तो then what will happen? This nucleophile will try to come from the side opposite to Br. Correct? This will try to attack from the side opposite to Br. So this, when it is coming opposite to Br, that we will write. So we take here methyl bromide. ठीक है बेटा, ये देखो CH3 Br हो गया, ये ब्रोमीन पे फ्रैक्शनल नेगेटिव, कार्बन पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल OH will attack from which side? Opposite to Br. ये लिख दिया मैंने OH, ये न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट? अब कहाँ अटैक करेगा ये? कार्बन पे। दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का नाम तो हमें पता है, सबस्ट्रेट इज मिथाइल ब्रोमाइड। Then what next point? As this OH will attack on carbon, it will try to create bond with carbon. But the creation of bond with carbon is a very slow process. It will create bond very slowly, and therefore this reaction can be a reversible reaction. So it is a slow addition of OH on carbon, and carbon and oxygen will create a bond. At the same time, carbon will try to break bond with Br. Why carbon will break bond with Br? Because Br is a weak nucleophile. OH is a stronger nucleophile. Carbon will always try to create bond with a stronger nucleophile. And these are the three hydrogen. So this Br is a nucleophile. हमने उस पर फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज दिया, OH अब बॉन्ड बना लेगा, उस पे भी फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज आ गया। करेक्ट है? एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, कल आपको बताए थे हमने, दिस फॉर्मेशन ऑफ आयन is what we call as transition state. We call it as transition state, and it is highly unstable. Highly unstable. Why it is highly unstable? Because carbon becomes pentavalent. Transition state, highly unstable, maximum energy. Transition state is having maximum energy and unstable because of energy. And now what will happen? अब कार्बन पेंटावेलेंट ज्यादा देर तो रहेगा नहीं, तो कार्बन क्या करेगा? Yes, it will break permanently its bond with Br. And when it breaks permanently bond with Br, we get Br here separated out plus, और क्या मिल रहा है हमको अब? हाँ जी, what we get here, बोलेंगे मुझे, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल में इंटरेस्टिंग बात रहेगी जो आपको नोट डाउन करना है, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ चला गया? अब अपोजिट साइड हो गया। पहले न्यूक्लियोफाइल कहाँ था? राइट साइड में। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ गया? लेफ्ट साइड में। इसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्शन ऑफ
कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन समझा? टेट्रा valency of carbon is having Br on the right hand side, that is nucleophile, but the product is having nucleophile on the left hand side. तो कैसा हो गया? वो इन्वर्शन हो गया पूरा, जैसे हमने डेक्स्ट्रो और लिवो पढ़े थे। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, अपोजिट हो गया उसका, इसीलिए वर्ड क्या यूज किया हमने? इन्वर्शन। इन्वर्ट हो गया वो, inversion of configuration। एक क्वेश्चन है, why we see inversion of configuration in this mechanism? आंसर आपके सामने, आप बोल सकते हैं, why we get inversion of configuration here? because क्या है? nucleophile attack from the side opposite to Br। अगर सेम साइड से करता तो फिर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते थे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल हैज टू अटैक फ्रॉम द साइड अपोजिट टू Br, सो देयर हैज टू बी इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इन्वर्शन भी कैसा है? एकदम 100%, 100% इन्वर्शन। तो यहां लिख सकते हैं हम 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आर यू गेटिंग दिस? अब ये मैकेनिज्म हो गया, वी गॉट मिथाइल अल्कोहल विथ 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस रिएक्शन में अब आपके पास में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है या टू स्टेप मैकेनिज्म है? ये सिंगल स्टेप है या टू स्टेप है? टू स्टेप दिख रहा है, लेकिन ये कंप्लीट एक ही स्टेप में होता है ना? ये ट्रांजिशन स्टेट तो थोड़ी देर के लिए बनता है, अनस्टेबल ज्यादा देर के लिए रहेगा क्या? कैन यू आइसोलेट, कैन यू सेपरेट दिस ट्रांजिशन स्टेट कंपाउंड? विल इट बी पॉसिबल? नो। तो क्या होता है? अटैक करता है, ये सिचुएशन क्रिएट होती है और इमीडिएटली ये फाइनल प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अगर हम ये इसको सेपरेट आउट कर सकते तो फिर टू स्टेप में बोल सकते थे, लेकिन वो टू स्टेप में होता है क्या? नहीं, वो एक ही स्टेप में। सिर्फ क्या है? वो अटैक बैक साइड से करेगा, बॉन्ड क्रिएट करेगा, और बॉन्ड क्रिएट करने के बाद इमीडिएटली वो फाइनल में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि पेंटावेलेंट अनस्टेबल स्टेट ज्यादा देर तक के नहीं रहना चाहिए। इसको समझाने के लिए बोल सकते हैं कुछ एग्जांपल आप, कि दिखता तो टू स्टेप है लेकिन हो जाता एक ही स्टेप में। ऐसा कोई एग्जांपल याद आता होगा अपने को डे टू डे बेसिस पे? जोर के क्लियरली। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ प्रोसेस दिखाइए ना, कोई एग्जांपल, प्रोसेस का एग्जांपल, कि वो इनडायरेक्टली फाइनल में होता है लेकिन लगता है कि एक ही सिंगल स्ट्रोक में हो गया। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मुझे अभी क्लिक हो गया, आप अपना व्हीकल चालू करते हैं, अभी तो मोस्टली टू व्हीलर हम इग्निशियन से ऑन करते हैं, पहले कैसा वो किक भी आपको पता है, किक मार के भी टू व्हीलर ऑन करते थे। हम करते क्या है, एक किक मारते और व्हीकल चालू हो जाता। दिखता तो ऐसा ही है ना, कि किक मारा और व्हीकल शुरू हो गया, ऐसा होता है क्या? उसका इंजन कितने सारे प्रोसेस करता होगा, कि जो फ्यूल है वो फ्यूल को जलाता होगा, वो फ्यूल जलता है, वो बर्न होता है, उसकी गैस जनरेट होती है और वो पिस्टन को पुश करता है फिर, और फिर आपका इंजन शुरू होता है। बट फॉर अस व्हाट, OH आया, Br को रिप्लेस करके चला गया। हाँ, जो हमको, जो जैसे अभी आपको किसी ने मारने के लिए हाथ ऊपर किया, तो आपका जो रिएक्शन रहेगा वो प्रोटेक्ट करने वाला, रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या अपने आप हो जाती है? डायरेक्टली होती है क्या? इनडायरेक्ट होती है? ये यहाँ ब्रेन को मैसेज मिलता है और फिर वो रिफ्लेक्स एक्शन आती है। आप जितने यंग रहते हैं आपके रिफ्लेक्सेस उतने अच्छे होते हैं, जैसे ओल्ड एज होते जाती है रिफ्लेक्सेस स्लो होते जाते हैं, क्योंकि ब्रेन स्लो काम करने लग जाता।
तो वैसे ही यहाँ पर भी है, ये दिखता 2 स्टेप में है लेकिन है एक्चुअली 1 स्टेप रिएक्शन, है ना। तो देयर इज नो आइसोलेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट, देयरफॉर इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके, मैं अभी जो नेक्स्ट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा उसमें परफेक्ट 2 स्टेप दिखेगी आपको। ओके, अब इसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ाए थे जिसमें मैंने रेट ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी की बात किया था, तो वो सभी चीजों को समझेंगे आप। आपके नोट्स में आप देख रहे हैं ऊपर ही लिखा हुआ है काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कल हमने समझाया था आपको। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, at what speed this reaction will take place, or what are the factor which will affect the speed of reaction or rate of reaction or velocity of reaction। तो इसमें कैसा होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल है और एक सबस्ट्रेट है, these two are participating here, तो rate of reaction is directly proportional to the concentration of CH3Br as well as the concentration of OH negative ion। दोनों पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों करेगा? क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोथ आर टेकिंग पार्ट इन द स्लो स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन which is considered as rate determining step, RDS, rate determining step is a slow step, although this is very slow and it is for very short period of time because it immediately get converted to the final product। सही है? तो स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल है या कितने आयन है? 2 है। एक बार देखेंगे बेटा, मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए, ये एक क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल और दूसरा क्या हो गया अपना ये सबस्ट्रेट। बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन स्लो स्टेप विच इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। बॉक्स ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, प्लीज डू रिमेंबर दिस। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और इसी को वहां लिखा है आपके नोट्स में, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें नेक्स्ट वाला एक और पॉइंट, ये एक पॉइंट पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलैरिटी, ऑफ द रिएक्शन, दैट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग। मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूल यानी ये हाइड्रोक्सिल आयन और ये मिथाइल ब्रोमाइड, both are participating in this reaction, hence molecularity is 2, which is known as bimolecular। bimolecular means 2 molecules, अगर एक ही होता तो मोनोमोलिकुलर बोलते हैं, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। और ये मॉलिक्यूलैरिटी को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, SN2 के सुपरस्क्रिप्ट में 2 लिखते हैं। तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइमोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं SN1 लिखूंगा तो ये मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो एक यही चीज जो उल्टी केमिस्ट्री में दिखाई देती है, बाकी सब सीधा सीधा काम है। लिखा है SN2, रीड कैसे करेंगे, आप बोलेंगे बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम मैकेनिज्म कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, SN2 पढ़ रहे हैं, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म।
तो SN2 ये नाम कैसे आया इसको, ये समझ गए आप, है ना। फिर से मैं एक बार लिख लूं, H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन। हाँ, N क्या, बोलिए बोलिए, हु इज टॉकिंग, हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज, N क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियोफिलिक। हाँ कौन है, और 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, बाइमोलिकुलरिटी, दैट it is bimolecular reaction, it is a bimolecular reaction। तो ये हो गया मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के दो एस्पेक्ट पढ़े, एक रेट ऑफ रिएक्शन, एक मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब एक और थर्ड एस्पेक्ट पढ़ते हैं हम, एंड दैट इज इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैंने पूछा था, आप लोगों ने रिप्लाई भी दिया था कुछ स्टूडेंट ने, तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। Inversion of configuration is observed in SN2 reaction mechanism. SN2 shows 100% inversion of configuration. Why? बोलेंगे धनश्री, why? देखो बोलना क्या है, प्रिसाइज आंसर, बिकॉज OH attack from the side opposite to Br, that's why there is inversion of configuration। करेक्ट है, आंसर अपना क्या रहेगा, inversion of configuration is observed in SN2 reaction mechanism because the nucleophile OH is attacking from the side opposite to the original nucleophile Br, hence there is 100% inversion of configuration। So inversion of configuration is due to the attack of new nucleophile। न्यू न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH-1 from the side opposite to Br, from the side opposite to Br, from the side opposite to Br, सही है। and therefore inversion of configuration, we say that it is 100% inversion of configuration and it is known as Walden inversion। ये Walden name of the scientist, name known as Walden inversion, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, Walden inversion। करेक्ट है, तो ये हो गया मैकेनिज्म का पार्ट। अब मुझे कुछ और आपको एक्स्ट्रा इसमें समझाना है। ये जो बेटा ट्रांजिशन स्टेट है, अनस्टेबल है, मैक्सिमम एनर्जी है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो जो ये लिखा है यहाँ पर, मैं इसको इरेज करता हूँ और एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे इसको, है ना। ग्राफिकली हम उसको समझेंगे, हाउ डज दिस inversion of configuration as well as formation of transition state takes place। For that we take on y-axis potential energy changes, and on x-axis we take progress of reaction, या इसे हम कहते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये पोटेंशियल एनर्जी कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहां पर ये ओरिजिन आ गया। अब ये ग्राफिकली समझेंगे, बहुत इजी है फंडा। ये मैकेनिज्म जो लिखा है ना, बस इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कंफर्म करेंगे कि यस
ट्रांजिशन स्टेट मैक्सिमम एनर्जी। अब हम इनिशियल स्टेट लेते हैं, ये दोनों कब रिएक्ट होंगे, रिएक्ट कैसे होंगे, बोथ विल कोलाइड, कोलिजन होगा दोनों का, किसका, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा काहे पे, सबस्ट्रेट पे, जब ये अटैक करेगा तो कोलिजन होगा, कोलिजन है, इसकी अपनी कुछ बेसिक एनर्जी रहेगी, तो दिस इज द एनर्जी, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, तो ये ए लिखते हैं, इनिशियल स्टेट है। यहां पर दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कोलाइड होंगे, कोलिजन होने से क्या होगा, कोलिजन होने से एनर्जी बढ़ेगी इनकी, करेक्ट है, तो कोलिजन होने से एनर्जी बढ़ेगी, दिस एनर्जी विल इंक्रीज एंड दिस इंक्रीज इन एनर्जी इज वेरी स्लो, क्योंकि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्लो हो रहा है, तो वो अटैक करेगा, बॉन्ड बन गया तो बनाएगा, नहीं तो वापस आएगा, फिर सेकेंड अटेम्प्ट लेगा, फिर बॉन्ड बनाएगा, थर्ड अटेम्प्ट करेगा और आखिर में सक्सेसफुल होगा। बट इन द प्रोसेस जो अटैक रहेगा वो स्लो रहेगा, इसीलिए जो प्रोग्रेस ऑफ एनर्जी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, स्लो होगी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और कहां तक जाएगी ये, एक मैक्सिमम लिमिट तक जाएगी, मैक्सिमम लिमिट यानी ट्रांजिशन स्टेट। देखिए फिर से समझाते हैं, ये दोनों कोलाइड हुए, कोलिजन बढ़ते गया, ये एनर्जी स्लोली इंक्रीज होते गई, इंक्रीज होने के बाद एनर्जी मैक्सिमम लिमिट तक जाएगी, और मैक्सिमम लिमिट पे जाने के बाद वो क्या होगा, वेरी फास्ट इट विल कम डाउन। सही है, फंडा समझा क्या, स्लोली इट विल इंक्रीज, it will reach to the maximum and from maximum it very fast it get converted to final product। जो मैक्सिमम रीच किया वहां अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किए तो यहां पर हमें मिलता है ट्रांजिशन स्टेट, मैक्सिमम एनर्जी, ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। और यहां पर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है सी, हियर वी गेट द प्रोडक्ट। ये ए में क्या रहेंगे, यहां पर रिएक्टेंट, डन। दिस एनर्जी कोइंसाइड विद द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सही है बेटा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कोइंसाइड होगा, ये एनर्जी अगर प्रोडक्ट यहां पर है तो ये किसके एनर्जी कोइंसाइड होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी। समझते जाना, बहुत कुछ नया सीख रहे हैं अभी हम, है ना। और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी को हम कहते हैं, यानी यहां से है ना, ये इधर से मिलेगा, इज दिस मच एनर्जी, दिस एनर्जी वी कॉल एज energy of activation, EA is equal to energy of activation। Are you getting it now? Energy changes in this reaction mechanism, energy changes taking place, energy change taking place in this reaction mechanism I am explaining with the help of graph। सही है, ओके। तो यहां पर रिएक्टेंट कोलाइड हो गए, कोलिजन के बाद पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, वो मैक्सिमम तक चली गई, और मैक्सिमम यानी ट्रांजिशन स्टेट, और वो ट्रांजिशन स्टेट से फिर वेरी फास्ट इट फाइनली गेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट यहां पर मिला सी एज ए प्रोडक्ट, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, this is the energy of reactant। सही है, and this much energy यानी रिएक्टेंट से ट्रांजिशन तक के जो एनर्जी गई उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट एनी ऑफ द रिएक्शन, to carry out any of the reaction
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड। आप जानते हैं ना, कोई भी रिएक्शन अगर करना है तो बिना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के रिएक्शन ही नहीं है। आप अपना मोबाइल में नया सिम डालते हैं, एक्टिवेट कराते हैं, तभी काम करता है, या बिना आपने खरीद लिया, मोबाइल में लगा दिया, चालू हो जाएगा? उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, सिस्टम के साथ जोड़ना पड़ता है। तो वैसा ही ये जो एनर्जी है, दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, करेक्ट। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये क्या रहेगा बेटा? ये देखो, दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सही है क्या? ये एंथैल्पी यानी एनर्जी, उसे हम केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स में क्या कहते हैं? एंथैल्पी। H से डिनोट करते हैं, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। फाइनल माइनस इनिशियली करना पड़ता है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब ये डिफरेंस को डिनोट करते हैं डेल्टा H से। सो डेल्टा H इज इक्वल टू H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट होगा। तो ये जो एनर्जी चेंज है, इसे हम कहेंगे एंथैल्पी चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन। वी कॉल इट एज एंथैल्पी चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन। अब मुझे सिर्फ इतना बोलिए मृणांक कि ये जो डेल्टा H है, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कभी भी माइनस करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तभी डिफरेंस आता है। यहां आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव? कपिल, अरे कैसा करते जी, कैसे पॉजिटिव आएगा? पायोशनी बोल तो जरा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो डेल्टा H है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। आपके पास है क्या नेगेटिव वैल्यू? Because product is more stable than reactant. Product is having less energy. Reactant is having more energy. है ना? समझा क्या? जैसे H प्रोडक्ट लिखते हैं, अगर ये 10 किलो जूल है, और रिएक्टेंट लिखते हैं यहाँ पर ये 20 किलो जूल है, तो आपका आंसर -10 आएगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसीलिए चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H एक नेगेटिव रहेगा। और जब डेल्टा H नेगेटिव हो गया बेटा, तो इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं हम नया अभी यहाँ पर, है ना? तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, करेक्ट है? तो आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और उस ग्राफ में आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3, इन द ट्रांजिशन स्टेज न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप आर बॉन्डेड टू द कार्बन विथ पार्शियल बॉन्ड एंड कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या दिखेगा आपको? ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉइंट नंबर 4 क्या है? ट्रांजिशन स्टेट कंटेन्स पेंटावेलेंट कार्बन एटम, हेंस इट इज हाईली अनस्टेबल। तो हाईली अनस्टेबल हो गया पेंटावेलेंट कार्बन से। When such SN2 reaction is observed in chiral carbon, हाँ, अब ये मैं एक पॉइंट समझाऊंगा आपको, उसको बाद में समझाता हूँ। पहले ये ग्राफ को समझे क्या आप लोग? ग्राफ समझ में आया? अब इस ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे आप, तो देखिए ये स्लो इंक्रीज है और ये फास्ट डिक्रीज है। ऐसा है, स्लोली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही, ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचा कि फटाक से वेरी फास्ट इट गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट में बेटा क्या लिखूं यहाँ पर? CH3OH प्लस Br। और रिएक्टेंट में क्या लिखूं मैं यहाँ पर? CH3Br प्लस OH। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या लिखेंगे हम?
ये लिखेंगे पूरा बॉक्स, है ना। तो क्या लिखेंगे ट्रांजिशन टीएस में, क्या लिखेंगे, ये बॉक्स बना लिया मैंने, OH आ गया फ्रैक्शनल नेगेटिव, कार्बन फ्रैक्शनल Br, और ये 3 हाइड्रोजन। तो ये ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा, ये रिएक्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा, ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, दैट्स व्हाई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर। डिफरेंस दोनों का नेगेटिव आएगा, इसीलिए ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कल इसमें थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट है, कल हमारा क्लास होगा इसी टाइम पे, है ना, और हम डिस्कस करेंगे इसको कल आगे। ओके, सी यू टुमारो।